So in last class, we discussed about some questions and we discussed about the Flipkart. है ना? We discussed about these two topics. Today we are going to understand that what are the various questions जो आए हैं आपके 2019 में. We are going to discuss about that. And after completion of that, we'll complete some more topics from the book, brand rejuvenation and all, right? So let's start with the class. Everyone, सब question paper. Okay. So everyone, screen पे देखो सब लोग. Question number 1. Define marketing and discuss the nature and scope of marketing. Define marketing and discuss the nature and scope of marketing. What is the meaning of marketing? Who is going to tell me about it? What is the meaning of marketing? Online and offline class. क्या होता है marketing? Yes, Akanksha. And everyone, turn on your camera. It's the process of distribution, transport, all activities like distribution, sales promotion, buying, selling, marketing research, all come under marketing. Online class. Wait, tell me what is the meaning of marketing? What is the meaning of marketing? Marketing is a process of satisfying the consumer's needs and providing the goods and services at different stages using different marketing methods. See, फिलिप कोटलर का एक डेफिनेशन लिख लेना आप लोग मार्केटिंग में. एंड सेकंड जो व्हाट इज द मीनिंग जरूर लिखना मार्केटिंग का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सो मेनी रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, selling, production, even analyzing the customer needs and fulfill their needs and satisfy the customers. ठीक है, यानी कस्टमर को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग में. उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, all the type of piece, transportation, warehousing, distribution, each and everything comes under the marketing. ठीक है, every process, promotion हो जाए, चाहे आपका सेलिंग हो, प्रोडक्शन हो, each and everything, even introducing the new product, that is also the part of marketing. So marketing is the activities. Marketing क्या है? सारे activities है such as, like लिख सकते हो आप क्या क्या? प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, ठीक है, एटसेट्रा लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट. एंड फाइनली सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड. ठीक है, फाइनली सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स, यानी कस्टमर नीड को एनालाइज करना, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस. मतलब इन शॉर्ट जितनी भी अभी तक चीजें पढ़ी हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, लाइक 4 P's, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द मार्केटिंग. अगर याद नहीं है तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो. ठीक है, सो मार्केटिंग क्या है? एक्टिविटीज है. बट वही अगर मार्केट आ जाएगा तो देन द आंसर विल बी डिफरेंट. सो मार्केट इज अ बेसिकली प्लेस. क्या हो सकता है? वो प्लेस हो सकता है, ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर ट्रांजैक्शन होगा. क्या होगा? एक्सचेंज होगा, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स. क्लियर हो गया? जहां आईएनजी लग जाएगा, इट इज अ प्रोसेस. क्लियर हो गया सबको कैसे लिखना आंसर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, इसी में discuss the nature and scope of marketing. Nature of marketing करवाया क्लास में? लिख लो nature and scope of marketing. हाँ, आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन फिर भी लिख लो बाकी बच्चे. नेचर ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का नेचर कैसा है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी है वेयर वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर द कॉमर्शियल पर्पस. सो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन, गुड्स प्रोडक्शन, सेलिंग, हर एक चीज इन्वॉल्व है. So these are the part of economic activity. So marketing is overall economic activity. बस ये लिख लो, marketing is an economic activity. First point, marketing is an economic activity. ठीक है, या economic function. Next one is, लिखिए, marketing is a legal process by which ownership transfers. Marketing is the legal process by which ownership transfers. लेकिन यहाँ पर ownership transfer में एक exceptional है कि that is only happened with the goods, where if we are going to purchase this specs, the ownership is transferred from the seller to the consumer. But in the case of service, it
इज नॉट हैपनिंग, मतलब उस केस में आपका कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन दैट इज अ लीगल एक्शन वेयर द ओनरशिप, यानी कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसका ओनरशिप प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर सेलर से कहां ट्रांसफर हो रहा है, कंज्यूमर तक। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग इज एन मैनेजरियल फंक्शन, मार्केटिंग इज एन मैनेजरियल फंक्शन, मार्केटिंग इज एन मैनेजरियल फंक्शन, मार्केटिंग इज एन मैनेजरियल फंक्शन। ऑनलाइन क्लास समझ आ रहा है बेटा? ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Marketing is an managerial function. See, marketing activity is done under the particular business organization. कोई भी company marketing activities में involved रहती है ना? So in this case, who is basically handling all the activities of marketing? Marketing manager जो है उनका सबसे बड़ा रोल होता है marketing को संभालने में। इसके अलावा जो कुछ इसके अलावा कुछ और भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट्स होंगे? जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट किस में आएंगे आपके? मार्केट। बेसिकली ये सारे इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट है, इनके सारे मैनेजर एक दूसरे के साथ मिल करके वर्क करेंगे। अब जैसे सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? सेल फोरकास्ट करता है, डिमांड एनालाइज करता है, राइट? सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एज वेल, बट दिस फंक्शन इज डन बाय द मैनेजर्स, दीज फंक्शंस आर डन बाय द मैनेजर्स। क्लियर हो गया? So this is marketing is a managerial function. Next point, marketing is a social process. Marketing is a social process. How social process? Because we have to understand and know the needs of the customers and how they are living in the society, what is their demand. So basically what we can say that it is the social process as well. We have to connect with the people, and in the case if we are connecting with the people, that is the social process as well. ठीक है? So something which is related with the society. Clear हो गया? So इसमें first point लिख सकते हो, marketing is a social process में, कि ये क्यों social process है, इसका reason है, first one is to knowing and understanding the needs of the consumer, first point. Second point is the whole process. फर्स्ट लिखिए इसमें, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस में लिखिए पहला पॉइंट कि ये सोशल प्रोसेस कैसे है। तो इसका पहला रीजन होगा नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स चेंजिंग नीड्स, द कंज्यूमर्स चेंजिंग needs and wants, ठीक है? सो इन दिस केस जो पहला चीज क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंज्यूमर का नीड है क्या एंड हाउ इट इज चेंजिंग, राइट? सेकेंड पॉइंट, इसी पॉइंट को बेसिकली रेफर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए दो तीन फंक्शन इसी के अंदर में कि बेसिकली मार्केटिंग सोशल प्रोसेस कैसे है। The second one is efficiently and effectively, एक मिनट रुकना बेटा। Okay, now the next point जो आएगा that is efficiently and effectively managing the demand and supply. मतलब कि क्यों ये सोशल प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ कस्टमर के नीड को, उनके प्रेफरेंस और चेंजेस पे ध्यान दिया जाता है। पब्लिक से हम लोग क्या है बेसिकली कनेक्टेड है, साथ साथ में डिमांड एंड सप्लाई क्या है, किस चीज का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का डिमांड एंड सप्लाई क्या है वो। और तीसरा जो हो जाएगा दैट इज इट इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट प्रोसेस। इन शॉर्ट ये चीज समझ जाओ कि पब्लिक से जो चीज रिलेटेड होगा दैट इज द बेसिकली पार्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस, ठीक है? सो मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल प्रोसेस। तो ये सारे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Marketing had dual objective. Marketing had dual objective. Marketing का दो ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? Profit maximization. First one is profit maximization and the second one is customer satisfaction. ठीक है? Always remember one thing, जब भी कभी मार्केटिंग आए तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जरूर वर्ड यूज करना, क्योंकि मेन एम मार्केटिंग में अभी यही है। क्लियर हो गया? सो द टू ऑब्जेक्टिव्स, जो दो ऑब्जेक्टिव है, किस चीज के दो ऑब्जेक्टिव आपके? मार्केटिंग के। एक तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना
और साथ साथ में दूसरा क्या है आपका कस्टमर को सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ, ये जितने भी नेचर थे क्लियर हो गया। स्कोप क्या है वो लिख लीजिए, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑलरेडी रेज्ड, सो वी हैव टू बी prepared for all these questions, right? Next one, what is the scope of marketing? What is the scope of marketing? मतलब इसका एक्सपेंशन कहां तक हो सकता है, मार्केटिंग का क्या मतलब छोर क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, सो पहला है कि टू स्टडी द कस्टमर नीड्स एंड वांट, टू स्टडी द कस्टमर नीड्स एंड वांट। अच्छा, नेचर जो मैंने अभी आप लोग को करवाया है इसमें आप लिख सकते हो कि मार्केटिंग का नेचर क्या है। मार्केटिंग जो है आपका दैट इज, हाँ आपका एक बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी है, इंफॉर्मेशन गेटिंग प्रोसेस भी है, आपका आर्ट्स भी है, साइंस भी है, क्रिएटिविटी भी है। मार्केटिंग इज ऑल्सो अ क्रिएटिव थिंग, सो वी कैन ऑल्सो राइट दीज पॉइंट एज वेल। ठीक है, इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स एड ऑन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट जो टॉपिक पे थे हम, स्कोप क्या है मार्केटिंग का। So first one is to study the needs of the consumer. Study the consumer wants and need या needs of the consumer. कस्टमर की नीड को पढ़ना, कैसे कस्टमर की नीड को समझ सकते हैं? हाउ? मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर सर्वे। ठीक है, कस्टमर सर्वे कर सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो भी चल रहा है आपका, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली नॉलेज गेन कर सकते हैं कि कस्टमर का डिमांड क्या है और कौन से प्रोडक्ट जो है वो आगे वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स आगे का फॉरकास्ट भी हम चीजों को कर सकते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं, कंज्यूमर का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो सारी चीजों का एनालाइज हम मार्केट रिसर्च से कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर वी कैन स्टडी द कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। सेकेंड पॉइंट, स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। तो वो तो ऑब्वियसली सबको पता है, स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? Online class and offline class, what is the meaning of consumer behavior? Buying patterns and हाँ बोलो बोलो। buying pattern ही पता है। See, consumer behavior, हाँ कह सकते हैं कि consumer behavior is a study where the marketers find out that what kind of purchasing pattern the consumer have, what kind of attitude they have, how we can influence the consumer, how we can motivate the consumer, what is the psychological effect of your product on the mind of the consumer. So all these questions, ये सारे question का answer will get through the marketing research, right? So the next one is study of consumer behavior is a scope of marketing. Study the consumer behavior. What happened? Study of consumer behavior. Next लिखिए, marketing helps in production planning. Marketing helps in production planning and development. Marketing helps in production planning and development. Marketing helps in production planning and development. Why? Because marketing is a creative activity, innovative activity. We can basically make a new innovative product, right? So in this case, marketing can be useful for production planning. What product, what quality of the product, what is the price of the product, and development of new product as well. So the third scope of the marketing is production planning and development. Next one is it is helpful to set the pricing policies. It is helpful to set the pricing policies. Pricing policies को set करने में कौन help करेगा? Marketing. Marketing की सारी pricing strategy याद है सबको? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज याद है सबको? सारी स्ट्रैटेजीज याद है प्राइसिंग की? याद कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइसिंग पॉलिसीज के लिए हेल्पफुल है बेसिकली। मार्केटर्स जो है, हाँ मार्केटर्स कैन डिटरमाइन द प्राइस थ्रू द बेसिकली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कंपटीशन को एनालाइज करके, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को देख करके, ठीक है, मार्केटिंग गोल के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव एंड मार्केटिंग में जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से वी कैन सेट द प्राइस, वी कैन मेक द प्राइसिंग पॉलिसीज, राइट? The next point is distribution. तो in short ये marketing mix से ही सारी चीज related है, product development,
next pricing policy, distribution, we can, हाँ. Now the next point is promotion, and I guess इतना point काफी है. Promotion और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लिखिए promotion. Promotion, distribution, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, तो we I don't need to elaborate it. And next लिखिए marketing control. Marketing control. So marketing audit is a one point. Marketing audit होता है जिसकी वजह से क्या होता है, marketing activities को we can control. So marketing control can be the scope of marketing. तो marketing के कौन कौन से scope करवाए मैंने, अदीबा? To study the consumer's need and wants. To study the consumer's behavior. Marketing help in production planning and development. It is helpful to set the pricing policies. Distribution. Promotion. Marketing Control, marketing control. So all these are the part of the scope of marketing. So the first question, जो पहला आपका जो question है, ये complete हो जाता है इसी के साथ कि ये marketing क्या है. तो इसका आंसर लिखने का तरीका सुन लो. सबसे पहले कोटलर, फिलिप कोटलर के द्वारा और AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा डेफिनेशन दिया हुआ है मार्केटिंग का. ठीक है. सो इन दोनों में से एक डेफिनेशन याद कर लेना. डेफिनेशन लिखना फर्स्ट, देन मीनिंग जरूर लिखना अपने वर्ड्स में, मीनिंग, एंड देन उसके बाद फिर नेचर एंड स्कोप के बुलेट पॉइंट्स, एंड उसके अंदर में पॉइंट अपना वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन हो गया खत्म. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by product life cycle? What do you understand by product life cycle? What are the problems are usually faced while introducing a new product? How can they be overcome? Explain. सबसे पहले मुझे बताओ, what is the meaning of product life cycle? क्या होता है product life cycle? क्या होता है product life cycle? प्रवीण, क्या होता है product life cycle? Who knows what is the meaning of PLC? Yes, मुस्कान बोलो. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोडक्शन के प्रोसेस से लेकर के मार्केट तक, जब तक उसको यूज ना कर किया जाए, उसके बीच में जितना भी प्रोसेस है उसको प्रोडक्ट साइकिल है. Who is going to tell me about the what is the meaning of product life cycle? Online class? Online class? Product life cycle refers to the different stages that a product go through, starting from the introduction stage to the maturity stage. Production life cycle, ठीक है. Production life cycle is something which is related with the life of your product. Like उस product आपके कितने सालों तक चलेगा. ठीक है. अगर आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन किया, यानी कि प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट में पीक पॉइंट तक, ग्रोथ के बाद आता है आपका मैच्योरिटी पीक पॉइंट, जहां पर फाइनल स्टेज पर आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, एंड फाइनली फिर वो क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है. तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट का लाइफ कितना है, जैसे एज होता है ना कि एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ 70 साल है, 75 साल है ऑन एन एवरेज, वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कितना हो सकता है, यानी उसका वो मार्केट में कितना दिन सस्टेन करेगा. एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका लाइफ साइकिल कैसे हो. जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उनका लाइफ आजकल देखा जाए तो बहुत कम होता है. व्हाई? न्यू नया प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, आता रहता है, और नए प्रोडक्ट आने की वजह से जो पुराना प्रोडक्ट है दैट इज बिकमिंग आउटडेटेड एंड दैट इज ऑब्सोलीट. एग्जैक्टली. तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, आप नए प्रोडक्ट को हमेशा इंट्रोड्यूस करोगे, पुराना प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा. एग्जांपल में मैंने VCD, VCR ये सब बताया था आप लोगों को. अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है आपकी प्रोडक्ट का क्या बता देगा, लाइफ. तो यू कैन एनालाइज, बेसिकली यू कैन, आप ये कैसे एनालाइज करोगे, यू कैन टेक द, आप दूसरे किसी कंपनीज का भी ड्यूरेशन देख सकते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी दूसरे कंपनी का आप एक रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हो. ठीक है. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय द चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स, कितनी जल्दी चेंज हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यू कैन ऑल्सो एनालाइज. ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है अभी ग्लोबल मार्केट हो चुका है. समझ में आ रही है बात? तो इंडिया से सिर्फ हम रेफर नहीं कर सकते, आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें यहाँ आ रही है ना.
सो मार्केट का क्या सिनेरियो, ये सारी चीजों से हम पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पहले से ही एनालाइज कर सकते हैं। बट मार्केटिंग जो होता है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, आप कितना भी पहले प्रेडिक्ट कर लो, द रियलिटी विल बी, इट माइट बी पॉसिबल कि डिफरेंट हो। लेकिन अब पीएलसी होता क्या है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है। इसमें मैंने आप लोग को दोनों चीज कराया था कि क्या क्या सिचुएशन होगा प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट की सिचुएशन में हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, करवाया था दोनों चीजें पीएलसी में। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं, बताओ मुस्कान। हाँ ठीक है, so introduction, growth, maturity and decline. The first stage is introduction, और इस introduction से पहले एक और stage होता है incubation और ideation stage, जहां पर what we are doing, we are designing the product, हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, इनोवेशन यूज करते हैं, ब्रांडिंग, कई बार हम प्रमोशन के लिए, जैसे क्या होता है कि कई बार मोबाइल आने से पहले प्री लॉन्च का एक इवेंट होता है, राइट। सो इन शॉर्ट यहाँ पर हम पूरा मार्केट का एनालाइज कर लेंगे, कौन सा टारगेट मार्केट होगा, कौन टारगेट कस्टमर होंगे। इंट्रोडक्शन से पहले ये सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, दैट इज नोन एज आइडिएशन और इंक्यूबेशन स्टेज। क्लियर हो गया। आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद आता है इंट्रोडक्शन, जहां आपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। जैसे ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च हुआ, अब आप अगर नई कोई कंपनी हो, ठीक है, बिल्कुल नई कंपनी हो और नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर करोगे, तो ऐसे केस में लोग आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं होंगे। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, वी कैन डू द एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब प्राइस से रिलेटेड चीजें अगर हम देखें, तो आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उससे पहले ऑलरेडी जो कंपनी है वो आपकी प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल कर रही है लो प्राइस में, तो इन दैट केस आपको प्राइस और भी लो करके, यानी पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यू कैन यूज इन दिस केस। ठीक है, कस्टमर आपके कम अवेयर होंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा वेरी लेस। और इस स्टेज में क्योंकि नया नया कोई प्रोडक्ट है, तो ज्यादातर कंज्यूमर क्या होता है, रिस्क टेकर नहीं होते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंटल जो होंगे आपके, कौन, कंज्यूमर, जो स्विच ब्रांड करने में बहुत एक्साइटेड नहीं होते कि हाँ चलो नया कुछ ट्राई करते हैं लाइक दिस, तो दे कैन ट्राई योर प्रोडक्ट, but once they are satisfied with your product, they will start doing the mouth publicity, यानी they will start doing the recommendation। भाई चलो ये प्रोडक्ट खरीदना है, अच्छा तुम्हें ये खरीदना नहीं, तुम इस वाले कंपनी का खरीद लो, बेटर है, like this you will start recommending, right? So these all things comes under the introduction stage। बहुत सारी कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही फेल हो जाती है because they are not able to analyze the market properly। Maybe it is possible कि उनके टारगेट कस्टमर कोई और हो और उन्होंने कहीं और लॉन्च कर दिया हो प्रोडक्ट को। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था कि BMW को अगर बिहार में समस्तीपुर में लॉन्च करेंगे तो बिक जाएगा। अगर हम चले जाएंगे बिल्कुल गांव में, बिल्कुल रिमोट एरियाज में, खैर मुझे एकदम रिमोट एरियाज के किसी गांव का नाम अगर आप लोग को याद है तो बताइए, वहां पर कोई अगर BMW ऑडी कुछ भी जाएगा तो नहीं सेल होगा बिकॉज दे आर नॉट द टारगेट कस्टमर। बट द ऑडी कैन बी, मतलब ऑडी का स्टोर कहाँ ओपन कर सकते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में, और अभी तो खैर सिटीज में भी आना शुरू हो चुके हैं, रांची में भी ऑडी का खुल चुका है शायद एक वो तो शोरूम। So in short, what we have to analyze that who are our customers. So this is a very big question and where we have to sell the product. So ये introduction stage clear हो गया। Aggressive advertisement, yes राजीव क्या बताए introduction stage में, stand up। Growth, maturity, decline। नहीं, what I said in the first stage, introduction। Introduction stage में क्या होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज में अब क्या होगा, क्योंकि अब आपने एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट किया तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने लग गए, ठीक है। अब आपके कस्टमर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे ना तो यू विल डू एडवर्टीजमेंट फॉर इंक्रीजिंग द ब्रांड इक्विटी, यानी वैल्यू को बढ़ाने के लिए करोगे। अवेयरनेस कंज्यूमर के बीच में आ चुका है आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट परचेज किया, दे विल डू द रिपीट परचेज इन द ग्रोथ, सेल्स इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हाँ, और हो सकता है कि कॉस्ट पर पर्सन आपका लो हो जाए तो रिड्यूस भी आप कर सकते हो प्राइस को,
ठीक है। वंस यू विल रीच द ग्रोथ स्टेज, यहाँ पर आप कस्टमर बेस बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं ना, बहुत ज्यादा आपका कस्टमर बेस बनेगा, एक्सपेंशन की पूरी सुविधा होगी, आप जितना चाहो तो आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो। लाइक अगर पटना में सेल करो, यू कैन एक्सपैंड इट टू द अदर सिटी एज वेल, राइट। वंस यू आर डन इन द ग्रोथ स्टेज, अगर आप हो गए ग्रोथ स्टेज में पहुंच गए, देन यू विल रीच टू द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब वो स्टेज होगा जहां पर एक लिमिट पे जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका, मतलब एक यहाँ पर डेवलपमेंट पहुंच चुका, बिल्कुल पीक स्टेज। अब यहाँ पर एक्सट्रीम आपका सेल होगा, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे, आपसे बेटर प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट अगेन सेम चीज क्या करोगे, अवेयरनेस के लिए फिर से शुरू करोगे, यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट करना, ग्रोथ स्टेबल हो जाएगा, एकदम वहीं पे स्टेबल हो जाएगा, लेकिन डिक्लाइन स्टेज पे ना पहुंचे, इसीलिए यू विल स्टार्ट डूइंग द एडवर्टीजमेंट। क्लियर हो गया। नाउ देखो, एडवर्टीजमेंट का रोल हर जगह है, हर जगह एडवर्टीजमेंट करोगे, लेकिन हर जगह ऑब्जेक्टिव मार्केट का अलग अलग है, समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट इज डिफरेंट। नाउ अगर आप ग्रोथ स्टेज में एक बार पहुंच गए, समझ में आ रहा है दिव्या? ग्रोथ स्टेज में पहुंच गए, ग्रोथ के बाद सॉरी मैच्योरिटी में पहुंच गए, अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे आ चुके हैं, तो अब वो आपसे बेटर प्रोडक्ट बना रहे होंगे, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो आप कोशिश करोगे, कुछ सेल्स प्रमोशन वगैरह यूज करोगे, इंसेंटिव्स वगैरह यूज करोगे, कम करने की कोशिश करोगे प्राइस, बेटर क्वालिटी, हो सकता है कि आप प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन भी करो, लेकिन ये सब चीज के बाद हो सकता है कि आपका स्टेबल वही जितने कस्टमर है वो उतने ही कस्टमर है, लेकिन यहीं से आपके धीरे धीरे कुछ कंज्यूमर्स जो है वो स्विच करने लगेंगे दूसरे ब्रांड की तरफ, एंड फाइनली जो है आपका वो मार्केट डिक्लाइन तब हो जाएगा जब मेजॉरिटी कस्टमर दूसरे ब्रांड में स्विच कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सेल्स लो हो जाएगा, कंपनी कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देगी, अगर जितना एक्सपेंशन कर रखा होगा ना वो अपने आप को फिर श्रिंक करने की कोशिश करना शुरू कर देगी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए भी कॉस्ट कटिंग कर लोगे, क्योंकि पता है कि अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिक नहीं सकता है। सो दिस इज PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड हर एक बेसिकली स्टेज में आपका कंपनी बंद हो सकता है, और हर एक स्टेज में एडवर्टीजमेंट आप करोगे, बट ऑब्जेक्टिव विल बी डिफरेंट। What are the problem which is faced while introducing a new product? कोई भी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? What are the various problem? इसमें कुछ पॉइंट्स लिखें। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना ये बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट जल्दी से जनरेट नहीं होगा, कंज्यूमर आपके ऊपर ट्रस्ट जल्दी से नहीं करेंगे। सो प्रमोटिंग द ब्रांड इट इज अ मेजर इशू इन द स्टेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रमोशन करना बहुत बड़ा इशू हो सकता है। एक्सपेंसेस दैट कैन बी अ चैलेंज। क्या बोल रहे बेटा? So promotion can be the major issue, promotion issue हो सकता है, expenses, competition भी हो सकता है, बिल्कुल competition, market को expand करना that can be issue, market expansion can be issue, expenses करना, नए कंपनी के लिए expense करना on advertisement, प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ठीक है, या फिर और भी कह सकते हैं गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस के इशू। तो ये जनरल पॉइंट्स है कि ये सारे आपके इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, these can be issues, right? समझ में आया? हाउ वी कैन ओवरकम थ्रू इट, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? क्रिएट वेरी गुड है ना, क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, सेल्स प्रमोशन को यूज कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन के थ्रू, या फिर हम ट्रेड फेयर या फिर इन सब चीजों का भी हेल्प ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड में मार्केट रिसर्च इसमें होगा, कस्टमर सर्वे एंड इन्फ्लुएंस और परसुएट द कस्टमर फॉर द ट्रायल। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली पॉइंट्स फॉर द we can overcome through this problem, and in starting as well, in starting what we can do, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स को यूज कर सकते हैं। नॉट वी डोंट नीड टू बेसिकली बेस्ड ऑन द एडवर्टीजमेंट ओनली, बट वी कैन डू द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। समझते हो क्या होता है IMC? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन वेयर वी कैन यूज ऑल टाइप ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया भी यूज करेंगे,
प्रिंट मीडिया भी यूज करेंगे, टेलीविजन भी यूज करेंगे आपका, ठीक है, ब्लॉग्स, कंटेंट, यूट्यूब, ये सब तरीके से भी हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट करना एज कंपेरिजन टू टेलीविजन बहुत सस्ता है, ठीक है. सो वी कैन डू द IMC एज वेल फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है. एंड व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू फोकस ऑन ओनली पोटेंशियल कस्टमर इन द स्टार्टिंग. वी डोंट नीड टू गो टुवर्ड द एक्सपेंशन ओनली कि भाई एक्सपैंड कर दे, but what we have to do, we have to fulfill the need of the potential customer first. ठीक है, clear हो गया. So we can overcome through this, मतलब these things we can overcome from this problem, PLC का जो problem है, ठीक है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है ये याद रखना, PLC क्या है याद रखना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, मुस्कान प्रेजेंटेशन फ्लिपकार्ट पे, चलिए स्टैंड अप बताइए. ब्रांडिंग इज समथिंग दैट कैन बी द लोगो. लोगो एक आइडेंटिटी है आपके प्रोडक्ट का, ठीक है. ब्रांड इज समथिंग क्या है, उसमें लोगो हो सकता है, मैसेज हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है. लेकिन जब ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो दैट इज द लीगल थिंग, दैट इज द रजिस्टर्ड ब्रांड को हम ट्रेडमार्क कहते हैं. रजिस्टर्ड ब्रांड को वी आर सेइंग ट्रेडमार्क. एंड ब्रांड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो एनीवन कैन कॉपी दैट, कॉपी कोई भी कर सकता है, बट वंस इट इज रजिस्टर्ड no one can copy that. हर एक जो आपका ब्रांड है होगा वो ट्रेडमार्क नहीं होगा, लेकिन सारे ट्रेडमार्क क्या होंगे, ब्रांड होंगे. सो दिस इज ट्रेडमार्क एंड ब्रांड, ठीक है. इसमें मैं पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी, और इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम है, तो 10 तरीके का ब्रांड नेम का नाम लिखवाना है मुझे, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे. चलो मुस्कान स्टैंड अप बताओ बेटा फ्लिपकार्ट का. Good afternoon, ma'am. आजो यहाँ आजो बेटा. Everyone listen what Muskan is saying about Flipkart. She is going to present in front of class. She is going to tell about the Flipkart. ठीक है, Flipkart के लिए she is saying some words. Yes, Muskan. Good afternoon, ma'am. And my dear friends, I am Muskan, standing before you to explain my presentation. So the topic of my presentation is Flipkart. Let's start with introduction. Flipkart, as we all know that Flipkart is online retail industry. It is one of the leading e-commerce players in the country, with over 11.5 million book titles listed and 11 different categories, more than 2 million registered users, and sell out 30,000 items in a day. Flipkart is founded by Sachin Bansal and Vinny Bansal in Bangalore, Karnataka in 2007. They started with initial capital of INR of rupees 4 lakh, and there are 7 warehouses initially, offices, and 60 delivery centers in 2015. Current valuation is become 11 billion on Feb 2016. Approx 4,600 plus employees are working under Flipkart. And their subsidiaries are like Myntra and eCart and much more other retail platforms. Now, what is the vision and mission of Flipkart? So the vision of Flipkart is to become Amazon of India. As we all know that Amazon is covered all over India, and they sell grocery items, fashions, and much more things. So their also vision is to make Flipkart as a better retail platform and send lots of varieties. And their mission is providing a delightful and memorable customer experience. And also their objective is completely hassle-free shopping experience with best price in all over India. Very good. Now come to the location of Flipkart warehouses. In Bangalore there is headquarter of Flipkart, and like Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Hyderabad, and much more places there are warehouses of Flipkart. Myntra acquisition on 22nd May 2014, Flipkart acquired Myntra for 2,000 crores and future investment of 600 crores in the fashion industry by Flipkart. And they use their taglines like bookstore at your door, the store at your door, and jo dikhta hai wahi bikta hai, and much more. They also use advertisement method, like they use children's in their advertisement to
play a role of adults and sell their and explain about their products. And now we have not much more time, so I just end up by saying that Flipkart is one of the great Great. Very good. Very good. Thank you so much. So anyone have any question on the basis of what we are going to basically describe? मतलब हम लोग differences लिखेंगे brand का और trademark का. तो सबसे पहला जो basis है लिखिए meaning. First basis is meaning. Meaning. That definition meaning के basis पे लिखिए. Brand में लिखिए. Meaning में brand में लिखिए. मीनिंग बेसिस मीनिंग होगा और फिर ऊपर में यहाँ ब्रांड लिखे ट्रेडमार्क लिखे बीच में ऐसे डिफरेंस के लिए एक लाइन. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है बेसिस, यहाँ पर ब्रांड, यहाँ ट्रेडमार्क. ठीक है, तो बेसिस सबसे पहला लिखिए मीनिंग. ब्रांड में लिखिए इट इज नेम, इट इज अ नेम दैट रिलेट्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, that relates to product and services offered by a company which evokes evokes positive image and emotions to the consumer. It is a name that relates to products and services offered by a company which evokes positive images and emotions to the consumers. बट यहाँ नेम के अलावा और भी चीजें होंगी. आपका सिंबल भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है. एवरीथिंग कैन बी द पार्ट ऑफ द ब्रांड. ब्रांड के लिए आप कलर्स भी देखो, जैसे यूसीबी व्हाट दे आर यूजिंग ग्रीन कलर फॉर देयर लोगो, राइट. मैकडी रेड एंड येलो, राइट. सो लेटर कैन बी आल्सो यूज. लेटर को भी आप यूज कर सकते हो, कोई लोगो या डिजाइन, कोई पिक्चर को भी आप यूज कर सकते हो, कोई साइन को भी आप यूज कर सकते हो फॉर ब्रांड. क्लियर हो गया. सेकंड, ट्रेडमार्क में आइए. ट्रेडमार्क में आइए. ट्रेडमार्क में क्या होगा, यही सारी चीजें रजिस्टर्ड, राइट. तो इसमें लिखिए इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड. ट्रेडमार्क में लिखिए इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड और ब्रांड नेम, रजिस्टर्ड ट्रेड और ब्रांड नेम, कॉमा लोगो LOGO लोगो, कॉमा कलर कॉमा साउंड, लोगो कलर साउंड SOUND साउंड. साउंड में देखा है आप लोगों ने कभी नोकिया का ट्यून, एप्पल का ट्यून, ये सारी चीजें आप दूसरे कोई कंपनी, मोबाइल कंपनी आपको यूज नहीं करने देगी, राइट. सो साउंड और स्लोगन. स्लोगन भी जो स्टेटमेंट्स या स्लोगन यूज होता है, और स्लोगन that basically identifies to company its service or product. Identifies a company to its service or products. यानी ट्रेडमार्क जो होगा, ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड जब हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है आपका स्टेटमेंट, स्लोगन, कलर, वर्ड्स, जो भी लेटर, लोगो, जो भी आपने यूज किया, जब उसको हम रजिस्टर्ड करा देंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडमार्क. सेकेंड आपका बेसिस क्या होगा, लीगल प्रोटेक्शन. सेकेंड बेसिस इज लीगल प्रोटेक्शन. लीगल प्रोटेक्शन मतलब डज हैव, मतलब हो सकता है, मतलब ब्रांड में लीगल प्रोटेक्शन हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, बट ट्रेडमार्क में 100% लीगल प्रोटेक्शन विल बी देयर. So you can write about it. Legal protection exists. Legal protection can और can be, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है. स्कोप में क्या लिख सकते हैं, स्कोप की अगर मैं बात करूं तो ब्रांड जो हो सकता है वो ट्रेडमार्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ब्रांड कैन बी अ ट्रेडमार्क और कैन नॉट बी अ ट्रेडमार्क. ब्रांड कैन बी अ ट्रेडमार्क और कैन
be a trademark, but all the trademark are brand. Clear हो गया? So these are the differences between trademark and brand. What are the types of brands? We will cover it in the next class. 10 टाइप्स के ब्रांड हैं जिनको मुझे करवाना है आप लोगों को. ज्योग्राफिकल ब्रांड्स, ये सब बहुत सारे ब्रांड्स है, रीजनल ब्रांड्स, ठीक है, इवोकिंग ब्रांड्स, बहुत तरीके के हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Okay, so see you all in the next class. Anyone have any doubt whatever we study today, online class and offline class? Anyone have any doubt online class? Okay, so see you all in the next class. We'll complete the question paper once again. एक बार वहीं से जहाँ से हम लोग किया है वहीं से we can continue. Okay, see you all in the next class.